Hello students, welcome you all on behalf of Resonance. Myself Srinivas Naidu, SRN sir. Today we are going to discuss about the memory based paper which was prepared on the questions given 26th June shift 2. So let us see the questions given in this paper. आज इस पेपर में पहला वाला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से हम देख रहे हैं. Atom A crystallizes in CCP structure in which all octahedral voids are occupied by atoms B. If two A atoms from adjacent face centers are removed, then formula of the compound is AMBN. Find M plus N. बच्चों आप जानते हैं इसमें CCP structure is formed by A atoms. That means these A atoms are at the corners and face centers, at the corners and face centers, that is 6 face centers and 8 corners are occupied by A atoms, and B atoms are at the octahedral voids. In the CCP structure, the octahedral voids are present at edge centers and body center. Okay. So, now it is given 2 A atoms from adjacent face centers are removed. So, from 2 adjacent face centers if A atoms are removed, the remaining face centers कितना होगा? 6 फेस सेंटर्स में 2 रिमूव कर दिया है तो 4 बचेगा. तो ये चारों से हम ये एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट कर रहे हैं. ये एटम्स पर यूनिट सेल दैट इज कॉर्नर्स में 8 है और फेस सेंटर्स में कितनी बचा है? 4 है. इनका कंट्रीब्यूशन फेस सेंटर्स वाले का 1/2 है. तो 1 + 2 दैट इज ये एटम्स आर 3 एंड बी एटम्स occupied octahedral voids. So how many octahedral voids होगा CCP में? 4 octahedral voids. चारों octahedral voids कौन ऑक्यूपाई किया है? B atoms ऑक्यूपाई किया है. So therefore number of B atoms per unit cell equal to 4. Now, the formula of the compound can be A3 B4 and this is compared with AM BN. So, M plus N value can be 7. ठीक है बच्चों. Next, this is the question from chemical bonding. Among the following compounds, how many contain 2 lone pairs on central atom? This is based on VSE PR theory, and here the compounds given are xenon tetrafluoride, H2O, sulfur tetrafluoride and CF4. And xenon tetrafluoride, it has sp3d2 hybridization. इसमें 2 lone pair 4 bond pairs होगा और H2O ये sp3 hybridized और 2 bond pairs 2 lone pairs होगा और SF4 sp3d हाइब्रिडाइज्ड ये एक लोन पेयर होता है और 4 बॉन्ड पेयर. CF4 में 9 लोन पेयर, चारों बॉन्ड पेयर ही है. तो इसमें क्वेश्चन ये है ये कंपाउंड्स में किस में 2 लोन पेयर होगा? ये HCF4 और H2O में 2 लोन पेयर है तो कितने हो गया? 2. सो आंसर 2. नाउ अनदर क्वेश्चन. 10 grams of a protein, molar mass 16 gram, is dissolved in 200 ml of water. Then osmotic pressure of solution in ATM is. This is question from solution colligative properties, direct substitution, formula based, that is pi equal to CRT formula. और इसमें osmotic pressure equal to concentration into R into T. Concentration means here we are calculating the molarity. The mass of the solute is 10 gram. And molecular mass is 60 and volume of the solution is 200 ml.
into 0.082, that is the R value, and T 300 Kelvin. This on solving you will get 20.5 atm. Now, the next question, find delta G of the following reaction. This is the question from electrochemistry, और इसमें हमको पहले गिवन डेटा से ई सेल कैलकुलेट करना है और ई सेल कैलकुलेट करने के बाद डेल्टा जी कैलकुलेट करना है. सो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल फार्मूला से हम डेल्टा जी कैलकुलेट करेंगे. तो डेल्टा जी कैलकुलेट करना है तो पहले ई सेल कैलकुलेट करना है. ई सेल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग नर्नेस्ट इक्वेशन. सो इसमें नर्नेस्ट इक्वेशन का हम अप्लाई करेंगे. पहले ई नॉट सेल कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड की ई नॉट वैल्यूज हम गिवन है क्वेश्चन में, ये यूज करके ई नॉट सेल कैलकुलेट किया है. और नर्नेस्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और नर्नेस्ट इक्वेशन में ई नॉट सेल वैल्यू वी गॉट माइनस 0.48 और ये 0.059 को मैं 0.06 ले रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली. और Cu2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन और SN2 plus concentration is also given in the question, that is SN2 plus की concentration 0.01 मोलार दिया है, Cu2 plus की 0.001. ये दोनों concentrations में इसमें सब्स्टिट्यूट किया और इससे हमको ई सेल आ रहा है माइनस 0.45 वोल्ट्स. अब डेल्टा जी वैल्यू कैलकुलेट करना है तो माइनस एन एफ ई सेल फार्मूला में ई सेल हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. F is Faraday's constant and N value is number of electrons transferred, that is 2, and if you calculate you will get 86,850 joules और इसको हम किलो जूल्स में इस फॉर्मेट में लिखने के लिए कहा था. तो अब x वैल्यू हो जाएगी 86868.5. Next question, this is for F block elements, that is D and F block elements topic से है. Which of the following can show higher than +3 oxidation state? So usually lanthanides shows +3 oxidation state. इसमें given options में कौन सा एलिमेंट +3 के अलावा दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है? और इसमें आप देखेंगे तो लैंथनम 57 +3 स्टेट शो करेगा, सीरियम 58 ये +3 के अलावा +4 स्टेट भी शो कर सकता है और ल्यूटेटियम +3 शो करेगा, बेरियम ऑलवेज +2 स्टेट ही शो करेगा. तो आंसर सीरियम. नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स और इसमें इन रिमूविंग टेम्पररी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बाय बॉइलिंग प्रोडक्ट obtained आर. इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को बॉइलिंग करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बट नॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट. ये ध्यान रखना है बच्चों. इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन्स से दिया हुआ क्वेश्चन है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड? वेरी इजी क्वेश्चन. एंड इसमें इंडियम, टेलुरियम, लेड, बिस्मथ ये दिया है. ये एलिमेंट्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं टेलुरियम इज द मेटलॉइड और बाकी सब मेटल्स ही है. सो एक्सेप्ट टेलुरियम बाकी सब मेटल्स है. और 16th ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर तो नॉन मेटल्स है, सेलेनियम, टेलुरियम मेटलॉइड्स है, पोलोनियम इज द मेटल. Next one, methane on combustion gave 81 grams of water. Then how many moles of methane are required for the combustion process? ये question from mole concept और easy question. When methane undergoes combustion, carbon dioxide and water बनेगा. इसमें हमको दिया है water 81 grams. So कितने मोल मीथेन से ये 81 ग्राम वाटर बनेगा? तो इसको पहले आप मोल्स में कन्वर्ट कर लो
और ये मोल्स से आप ये बता सकते हैं इसमें आधे मोल्स मीथेन का हो जाएगी, क्यों 1 मोल मीथेन 2 मोल्स वाटर दे रहा है, तो ये इतने मोल से मीथेन कितने मोल बनेगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 2.25 मोल्स. It is a very simple question. Next, which of the following is odd electron species? ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है. ये 15th ग्रुप में सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स दिया है आपको, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट करके देख लो. इसमें NO2 के लिए नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन के लिए 2 ऑक्सीजन एटम्स है 16, सो 7 + 16 23 इलेक्ट्रॉन्स. और इस तरह आप सभी ऑक्साइड्स की इलेक्ट्रॉन्स गिन के देख लो, इसमें केवल ये NO2 में ही ऑड इलेक्ट्रॉन है और बाकी सभी में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. नेक्स्ट वन, activation energy of reaction in presence of catalyst is 10 kilojule less than activation energy of reaction in absence of catalyst at 300 Kelvin. If K catalyst upon K absence of catalyst equal to e power x, then value of x is. इसमें ये अर्हेनियस रेट इक्वेशन से हम इस तरह लिख रहे हैं K इक्वल टू A इंटू ई पावर माइनस ए बाई आर टी. ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में. अब इसमें हम ये रेशियो ले रहा है तो ये E इंटू ई पावर ये माइनस ये डैश बाई आर टी आ जाएगा, और इसमें ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, दैट इज ये डिफरेंस आपको दिया है 10 किलो जूल और 10 इंटू 1000 बाई ये आर वैल्यू जूल्स में हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 8.314 एंड टेम्परेचर इज गिवन. सो दिस ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट e पावर 4. दैट मीन्स इट इज सिंपली x वैल्यू equal to e power x, so x equal to 4 हो जाएगी. ये क्वेश्चन तो ये वाले क्वेश्चन काइनेटिक्स से है, केमिकल काइनेटिक्स. नेक्स्ट वन, ये भी मोल कॉन्सेप्ट का है. 6.1 ग्राम ऑफ CNG on combustion with 208 grams of oxygen to produce carbon dioxide and water with lot of heat. Calculate amount of carbon dioxide produced in gram. Consider CNG as methane. ये तो CNG को मीथेन में कंसिडर करने के लिए बोला है और आंसर को हम नियरेस्ट इंटीजर में एक्सप्रेस करना है. अब इसमें 6.1 ग्राम ऑफ मीथेन है तो इसको हम मोल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं 6.1/16 मोल और 208/32 और ये 0.38125 मोल हो जाएगा और ये 6.5 मोल ऑन कैलकुलेशन. और इसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे. लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे? मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये 0.38125/1 और 6.5/2. देन जिसकी वैल्यू कम आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है. तो इसमें मीथेन का वैल्यू कम आएगा ये रेशियो, तो इसलिए ये मीथेन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. अब हम प्रोडक्ट की मोल्स किससे डिसाइड करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट से. सो आप यहाँ देख लो 1 मोल से ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है. सो इतनी मोल्स ऑफ मीथेन से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी इतनी मोल्स मिलेगा, दैट इज 0.38125 मोल्स ही मिलेगा. और हमको चाहिए था मास, तो इसलिए मास कैलकुलेट कर रहे हैं बट बाय मल्टीप्लाइंग विथ मोलार मास. कार्बन डाइऑक्साइड के मोलार मास से हम ये मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा आंसर 16.775 ग्राम और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये मिलेगा 17. नेक्स्ट वन, इन 4d ऑर्बिटल द नंबर ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोड्स आर रेस्पेक्टिवली. और इसमें एंगुलर एंड रेडियल नोड्स कैलकुलेट करना है तो एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू इट्स एजिमुथल क्वांटम नंबर and radial nodes will be equal to n minus L minus 1. So, for 4d orbital L value is 2 and for 4d orbital radial nodes will be 4 minus 2 minus 1. So, angular nodes and radial nodes will be 2 and 1. This is from coordination compounds.
और इसमें आपको ये दिया है एक्वेस कॉम्प्लेक्स, और ये एक्वेस कॉम्प्लेक्स को अमोनिया में डिसॉल्व किया है। अमोनिया में डिसॉल्व करने के बाद जो दूसरे कॉम्प्लेक्स, नए कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक इन नेचर है, और वो कॉम्प्लेक्स में T2G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा ये पूछा है। और इसमें ये एक्वेस कॉम्प्लेक्स एक्सेस ऑफ अमोनिया से रिएक्ट हो गया तो ये हेक्सामीन कोबाल्ट 3+ कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये डायमैग्नेटिक इन नेचर है, और इसमें ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, सो इसकी प्रेजेंस में ये 3d6 4s0 कॉन्फ़िगरेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, पहले T2G ऑर्बिटल्स फिलअप हो जाएगी। सो इसमें ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ये T2G ऑर्बिटल्स में पहले फिलअप होगा और EG ऑर्बिटल्स वेकेंट रहेगा। तो इसलिए इसमें T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। सो आंसर इज 6। और ये डायमैग्नेटिक भी है, क्यों? इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? D2sp3। नेक्स्ट, in froth flotation process, main role of added डिप्रेजेंट is, डिप्रेजेंट को हम क्यों ऐड करते हैं? और डिप्रेजेंट को इसलिए ऐड करते हैं जब भी दो सल्फाइड ओर्स साथ में हैं तो इसको सेपरेट करने के लिए, एक को फ्रोथ में आने का रोक के दूसरे को हम फ्रोथ में रिमूव करने के लिए हम ये डिप्रेजेंट को यूज करते हैं। सो in the froth flotation process, the role of depressant is to separate two sulfide ores by selective preventing one ore from forming froth. So example में आप ये ले सकते हैं, lead sulfide and zinc sulfide ओर्स एक साथ है तो तब इसमें एक ओर को हम सेपरेट करना है तो तब हम इसमें ये सोडियम साइनाइड को डिप्रेजेंट जैसे यूज करते हैं। तब ये सोडियम साइनाइड क्या करेगा? जिंक सल्फाइड से रिएक्ट करके सोडियम कॉम्प्लेक्स, जिंक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये जिंक सल्फाइड के ऊपर एक लेयर जैसा बनेगा और ये रोकेगा फ्रोथ बनने में। तो और लेड सल्फाइड फ्रोथ के साथ निकल जाएगा। ठीक है बच्चों? और नाउ द आंसर इज selective preventing one ore from forming froth. This is the answer. And next, another easy question, which of the following S block elements does not give flame color test? हर सेशन में ये क्वेश्चन तो ये आ रही है कलर के रिलेटेड, तो ये कलर्स के रिलेटेड ध्यान देना है। आप बेरिलियम, सोडियम, लिथियम, रुबिडियम ये मेटल्स दिया है और इसमें आल्कली मेटल्स में लिथियम क्रिम्सन रेड कलर देगा, सोडियम येलो कलर, पोटेशियम वायलेट और लिलैक कलर, and rubidium red, violet, cesium blue colors. And in the alkaline earth metal, beryllium, magnesium no color, or calcium brick red color, strontium crimson red, barium apple green color शो करेगा. So आंसर इसमें कौन सा शो नहीं करेगा? बेरिलियम. Next one, which of the following can show disproportionation reaction? So इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में यदि वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब ये हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को रिड्यूस भी हो सकता है, तो तभी वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकता है. अब इसमें गिवन ऑप्शंस में MnO4 2- undergoes disproportionation in acid medium to give MnO4- and MnO2. Here in MnO4 2-, Mn is in +6 state and Mn is in +7 and here Mn is in +4 state. ठीक है बच्चों, ये 16 क्वेश्चंस इस सेशन में फिजिकल और इनऑर्गेनिक से मिला है. आई होप यू एंजॉयड दिस. थैंक यू.